Hello friends, my name is Mohit Malviya and I am CA final year student, and the purpose of this video is to discuss MCQ which are issued by ICAI. In this video, we are discussing MCQ between 75 to 100. This video is for Mission 60 batch, which is mentored by CA Komal Tyagi sir. So in this video, firstly I read out the MCQ and explain the same briefly with some background of applicable provisions. Then you should pause the video and try to solve the MCQ by yourself, and thereafter I will explain the relevant provisions and show the correct answer. This video is in English and Hindi both for understanding of each student. The explanation of each video is given on this booklet, which you can get on demand basis. What you need to do is just comment on the video and drop your email so we can provide you the same. So that's it from the introduction. Now we move on to the MCQ. There are the explanation in this booklet which we can provide to you if you want. MCQ number 1, 75. Mr. X acquire a house property at Mumbai from Mr. Y, a resident, for a consideration of 90 lakhs on 26/2020. On the same day, Mr. X made two separate transactions, hereby acquiring a urban plot in Kolkata from Mr. C for a sum of 49.50 lakhs and a rural agriculture land, इसके ऊपर TDS नहीं कटता है, from Mr. D for a consideration of 60 lakhs. Which of the following is correct? TDS से related है, चार ऑप्शन है आपके पास. Now if you like, you can pause the video and try it out. Now if your answer is D, congratulations, your concepts regarding TDS is quite good. In this MCQ, we can see in explanations, in this MCQ, section number 194 IA is attracted, and in this specific section it was mentioned that if a amount of consideration is more than 50 lakh rupees or more, then TDS should be deducted. अब यहाँ पर इस MCQ में जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन था वो 90 लाख रुपीस का था, तो हाँ TDS डिडक्ट होना था, ठीक है, 1% से. लेकिन जो सेकंड ट्रांजेक्शन था 49, वो 50 लाख रुपीस से कम था, तो वहाँ पे होने की TDS डिडक्ट होने की ज़रूरत नहीं है. एंड जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड था फ्रॉम मिस्टर डी, रूरल एग्रीकल्चर लैंड एक्सेप्शन में आता है, ये सिर्फ अर्बन लैंड के ऊपर ये TDS का प्रोविज़न लगता है, तो 60 लैक्स भी बाहर हो जाएगा. तो 90 लैक्स के ऊपर 1% डिडक्ट होना चाहिए था, लेकिन ये जो पीरियड है वो स्पेसिफाई करा गया था कि इस पीरियड के बीच में जो रेट्स हैं TDS के वो क्रैश हुए थे, तो डी सही होगा. जो 75% करा जाएगा, जो एप्लीकेबल रेट है 1% का, तो 0.75% और 90 लैक्स इज अट्रैक्टेड एंड नो TDS पेमेंट ऑन 49.50 lakhs and 60 lakh rupees. 60 lakh rupees because it is a agriculture land. Now we move on to the next MCQ. A notified infrastructure debt fund eligible for exemption under section 10 subsection 47 of the Income Tax Act 1961 has to pay interest of 5 lakh rupees to company incorporated in a foreign country. The foreign companies incurs expenditure. Foreign company को इंटरेस्ट पे करना है 5 लाख रुपीस का, और उसके ऊपर एक्सपेंडिचर्स इंकर करे हैं 12,000 रुपये के, उस 5 लाख के इंटरेस्ट को अर्न करने के लिए. एंड द फंड हैज़ ऑल्सो पे the interest of 3 lakh rupees to Mr. Frank, who is the resident of a
नोटिफाइड जुरिस्डिक्शन एरिया ट्रांसफर प्राइसिंग क्लिक हो जाना चाहिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नाउ इफ यू लाइक यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट आउट। Now, if your answer is D, congratulations, your concepts regarding international taxation and NR taxation is quite clear. अब यहाँ पे मैटर ये है कि जब आप किसी NR को या फॉरेन कंपनी को NR को या फॉरेन कंपनी को पेमेंट करते हो, तब सेक्शन नंबर 115A एप्लीकेबल हो जाता है और आपको 5% का TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। 5% का आप TDS डिडक्ट करोगे, उसके ऊपर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करोगे, लेकिन आपको किसी भी तरीके के एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप NJA नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया को अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको 30% प्लस सरचार्ज 30% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको है ना डिडक्ट करना पड़ेगा। यानी डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जहाँ पे आपको 5 lakhs के ऊपर आपको है ना 5 lakhs के ऊपर 5.20% डिडक्ट करना पड़ेगा। और जब आप NJA को मिस्टर फ्रैंक जो सिटीज़न है NJA को उनको पेमेंट करते हैं तो 31.2% आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यही एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। ये 115A का रेफरेंस आ गया और ये यहाँ पे सेक्शन 94A का रेफरेंस आ गया NJA के लिए, ठीक है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट MCQ पे शिफ्ट होते हैं। अब प्राइवेट बैंक हैज़ नॉट फाइल्ड हिज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस or reportable accounts in relation to specified financial transaction for the financial year 2020. A notice was issued by the prescribed income tax authority on 1st October 2020 requiring the bank to furnish the statement by 31st October 2021. The bank, however, furnished the statement only on 15th November 2021. What would be the penalty levied under section 271FA? 271FA, ठीक है। यहाँ पे जो पूछा गया है वो SFT के बारे में पूछा गया है। SFT का जो स्टेटमेंट फाइल करने की जो डेट होती है वो होती है 31st May। तो उसके हिसाब से आपको ये सॉल्व करना है, मैंने हिंट दे दी है, प्लीज ट्राई इट आउट। इफ योर आंसर इज A, यू आर करेक्ट। ये मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन से बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने बताया था कि जो 31st May है वो लास्ट डेट होती है। ये देखिए ड्यू डेट 31st May, ठीक है। अब इसके बाद क्या रहता है कि उस डेट के बाद जब तक कोई सा भी नोटिस इशू नहीं होता है उस दिन तक आपको 500 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी लगती है। तो 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक आपको 500 रुपीज़ पर डे से पेनल्टी लगी है। फिर उसके बाद जब आपको स्पेसिफाइड टाइम दे दिया गया था कि इस टाइम के अंदर आपको पेमेंट नहीं करना है, मतलब आपको पेमेंट करना है, फिर भी आपने पेमेंट नहीं करा, उसके जस्ट बाद से आपको 1000 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी लगी। तो 15 दिन के लिए जो पेनल्टी लगी है वो लगी है आपको 1 नवंबर टू 15 नवंबर, जो आपका पीरियड एक्सपायर हो गया था 1000 रुपीज़ पर डे से, और उससे पहले 31 मई के बाद आपको 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से 153 डेज़ के लिए पेनल्टी लगी है। तो ये आपको कंसीडर करना है। तो आपका आंसर 91,500 आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट MCQ पे। मिस्टर P is a salaried employee. On 1st 6, 2020 he gets a gift
ही गेट्स अ गिफ्ट्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मुंबई, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 80 लाख रुपीज़ फ्रॉम क्यू ऑन 28/2020 P gets a gift of a house property in a small town. सेकेंड उसको दूसरा गिफ्ट मिला, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 50,000 रुपीज़. फिर उसके बाद है ना ऑन 3 P ऑल्सो गेट्स अ गिफ्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एक और हाउस प्रॉपर्टी का गिफ्ट मिला जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 1 लाख रुपीज़. वॉट शुड बी द टैक्स इम्प्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ PQR? तीनों के केस में आपको है ना टैक्स इम्प्लीकेशन बताना है, ठीक है. और ये अजम्पशन लिया गया है कि वो रिलेटेड नहीं है, ठीक है. तो मतलब यहाँ पे गिफ्ट्स के प्रोविज़न, IFOS, कैपिटल गेन आपको दोनों कंसिडर करने पड़ेंगे. प्लीज़ ट्राई इट आउट. If your answer is C, congratulations, your concept regarding IFOS is clear. अब यहाँ पे बात हुई है कि गिफ्ट मिला है, गिफ्ट मिला है तो ये ट्रांसफ़र नहीं है, और ट्रांसफ़र नहीं है तो कैपिटल गेन एप्लीकेबल नहीं हुआ. तो Q और R के ऊपर कोई भी टैक्स की इम्प्लीकेशन नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि उनने गिफ्ट दिया है. अब आती है बात P की. अगर आपको IFOS में गिफ्ट को टैक्सेबल करना है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा है, जो केस नंबर 1 और केस नंबर 3 में है, यानी 81 लाख रुपीज़ आपको है ना टैक्सेबल होगा, जो इस C ऑप्शन में दिया गया हुआ है, ठीक है. इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट MCQ पे 79. और मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग सही तरीके से हो रही है कि नहीं. हाँ, एवरीथिंग इज़ ओके. अब इसके बाद बात करते हैं 79 की. PQR Limited, a domestic company has distributed डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा होगा 15/10/2020 को. ओके, मार्केट एज इम्पॉर्टेंट, ये अमेंडमेंट से है जो नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है 80M डिडक्शंस का, ठीक है. इसमें क्या हुआ है कि डोमेस्टिक कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कराया अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कितने का, 2,30,000 रुपीज़ का, ठीक है. प्लस उसने अपनी सब्सिडी से रिसीव भी करा है डिविडेंड 50 लाख रुपीज़ का. पहले क्या होता था कि जब वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरते थे तो उनको जितना डिविडेंड रिसीव हुआ है वो माइनस करके सिर्फ नेट अमाउंट का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरते थे. लेकिन अब वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हट गया है. अब उस डबल टैक्सेशन को हटाने के लिए सेक्शन नंबर 80M यहाँ पे लाई गई है. 80M सिंपल चीज़ बोलती है. 80M बोलता है कि जितना भी आपको प्रीवियसली आपको डिविडेंड मिला है उतने का हम आपको डिडक्शन दे देंगे 80M में, सब्जेक्ट टू द कंडीशन उतना आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो. अब यहाँ पे उसको 60 लाख रुपए मिलता है, लेकिन 60 लाख क्या, उसने तो है ना 2,30,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो मतलब उसको 7 लाख का तो डिडक्शन ईजिली मिल जाएगा, ठीक है. उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस D इज़ करेक्ट ऑप्शन. एक बार आपको एक्सप्लेनेशन भी बता देता हूँ. इसके अंदर भी वही चीज़ दी हुई है. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जो इसकी ड्यू डेट रहती है, मतलब ये ड्यू डेट से पहले होना चाहिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट. अब ड्यू डेट क्या है यहाँ पे? ड्यू डेट मीन्स 1 month बिफोर द ड्यू डेट ऑफ ROI अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भी अमेंडमेंट है, यहाँ पे भी डेट चेंज हुई है, 31 अक्टूबर हुई है, तो उसके 1 month बिफोर यानी 30 सितंबर तक आपको है ना ये जमा करवाना है, तभी जाके आपको 80M में डिस्कस मिलेगा. बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको केयरफुली देखिएगा. अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80. लीमा लिमिटेड, अ डोमेस्टिक कंपनी परचेज इज ओन शेयर, मतलब बायबैक का केस है. द कंसिडरेशन फॉर बायबैक अमाउंट टू ₹23 में बायबैक कराए, मतलब जो डिफरेंस अमाउंट रहता है, एडिशनल अमाउंट जिस पे आप बायबैक करते हो उस पे लगता है. 17 लाख पे इशू करा था अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 40B, मतलब 6 लाख के ऊपर लगेगा. मुद्दा ये है किस परसेंटेज से लगेगा. आपको है ना सेक्शन नंबर 115QA याद आना चाहिए. ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लेकिन ऐसे ही छोटे छोटे MCQ आ सकते हैं और एक या दो मार्क्स आपको इजीली दिला सकते हैं. तो आपको याद होना चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए छोटे चैप्टर्स पे. अब इसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि क्या परसेंटेज लगेगा. प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योर ओन.
इफ़ योर आंसर इज सी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग बायबैक इज क्लियर। यहाँ पे जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा वो 20% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4%। आप वो एप्लीकेबल करेंगे 6 लाख रुपीज़ पे जो डिफरेंस अमाउंट था, तो आपको 139776 आंसर मिलेगा। एक अच्छे टॉपिक से क्वेश्चन रीट से, इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हैं, एग्ज़ाम में आने की बिल्कुल चांसेस हैं। रीट को रेंटल इनकम हुई है 2 करोड़ की, कैपिटल गेन की इनकम हुई है 1 करोड़ की, और इंटरेस्ट इनकम हुई है 3 करोड़ की। ठीक है, फिर ये वाला जो पॉइंट दिया हुआ है ये अब रेलिवेंट नहीं है क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हट गया है। तो हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो प्लीज़ रीड इट आउट नाउ। इफ़ योर आंसर इज डी, congratulations, your concepts regarding REIT or I can say a business trust is correct। REIT, और मैं बोल सकता हूँ कि बिजनेस ट्रस्ट के पास क्या रहता है, पास थ्रू स्टेटस रहता है, लेकिन वो सिर्फ 3 इनकम के लिए रहता है। एक रहता है इंटरेस्ट इनकम के लिए, एक होता है डिविडेंड इनकम के लिए, और एक होता है रेंटल इनकम के लिए। लेकिन यहाँ पे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की भी इनकम है जो सीधा सीधा टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो डी वाले पॉइंट में यही बोला गया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रीट। बाकी जो 2 हैं उसको पास थ्रू सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस में कुछ ना कुछ गलत दिया हुआ है। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 82। मिस्टर आर्यन इज कंस्ट्रक्टिंग अ रेसिडेंशियल हाउस। इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा, इसके अंदर छोटे छोटे न्यूआंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। मिस्टर आर्यन इज कंस्ट्रक्टिंग अ residential house property in Coimbatore for self-occupation. He has taken a loan of 35 lakh from SBI on 30/3/2020. For this purpose, he pays interest of 3 lakh during the previous year 2020. He repays 1.50 lakhs towards principal on 31/3/2020. The construction is completed. Most important line, construction is completed. The stamp duty value, oh my god, stamp duty value. This is the only house property of Mr. Aryan. अब यहाँ पे डिडक्शंस की बात करी गई है, 80C के डिडक्शन की बात करी गई है, सेक्शन नंबर 24 के डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी की बात करी गई है, और सेक्शन नंबर 80 EEA की बात करी गई है। आपको तीनों को कंसिडर करते हुए आंसर करना है। So if your answer is D, congratulations, your concept is very good। अब यहाँ पे बात करता हूँ, एक एक करके सेक्शंस की बात करता हूँ। सेक्शन नंबर 24 में डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो पहले का इंटरेस्ट रहता है, अब आप ये देखिए यहाँ पे इसने किस तारीख पे लिया है, और कंप्लीट बाद में जाके हुआ है, कंप्लीट हुआ है नेक्स्ट ईयर में जाके। तो जो पहले का जो कैपिटल इंटरेस्ट रहता है उसका तो 1/5 बाद में मिलता है आफ्टर द कंस्ट्रक्शन, तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। 80C के अंदर भी डिडक्शन तभी मिलता है जब आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए, तो वो कंप्लीट नहीं हुई है तो अभी आपको नहीं मिलेगा। और 80 EEA में मिल सकता था, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख से ऊपर पहुंच गई, यानी 46 लाख रुपये बता दी इनने, तो वो भी नहीं मिलेगा। तो मिस्टर आर्यन इज नॉट इंटाइटल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, सेक्शन 80C एंड सेक्शन 80 EEA। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बात करता है टोटल मर्जर और पार्शियल मर्जर से। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा टोटल मर्जर और पार्शियल मर्जर का। पार्शियल मर्जर ये होता है कि अगर किसी मैटर के ऊपर आप अपील पे गए हो और उसी असेसी का कोई सा दूसरा मैटर है, मतलब जो अपील में नहीं गया है, उस दूसरे मैटर के अंदर आप उसका असेसमेंट करवा सकते हो, उसका रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, उसके लिए आप रिवीजन में जा सकते हो। ठीक है, और टोटल मर्जर ये होता है कि अगर आपका कोई सा भी मैटर पेंडिंग है अपीलेंट अथॉरिटी के पास, तो आप उस असेसी से रिलेटेड किसी भी मैटर के ऊपर उस असेसमेंट ईयर से आप है ना आगे रिवीजन में नहीं जा सकते। जो टोटल मर्जर का कॉन्सेप्ट होता है वो एप्लीकेबल होता है सेक्शन नंबर 264 के अंदर, रिवीजन के अंदर, और प्लस उसके बाद पार्शियल मर्जर का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल होता है सेक्शन नंबर 147 रीअसेसमेंट, सेक्शन नंबर 154 रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, और सेक्शन नंबर
263 रिवीजन बाय CIT। ठीक है, अब यहाँ पर इसी थीम के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि असेसमेंट हो रहा है सतपुड़ा लिमिटेड का, जो कंप्लीट करा गया है सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3 के अंदर। एडिशन कर दिया गया है 48 लाख रुपीज़ का और वो अपील चले गया है। हमें बताना है कि कौन सा मैटर गलत है। प्लीज़ ट्राई इट आउट। सो इफ़ योर आंसर इज सी, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल मर्जर। क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि 264 के अंदर टोटल मर्जर एप्लीकेबल होता है और आप उससे रिलेटेड मैटर पे आप रिवीजन में नहीं जा सकते अगर कोई सा पेंडिंग है, कोई मैटर पेंडिंग है अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास। ठीक है, बाकी यहाँ पे असेसमेंट की बात करिए जहाँ पे आप रीअसेसमेंट की बात करिए जहाँ पे आप जा सकते हैं, रेक्टिफिकेशन की बात करिए जहाँ पे आप जा सकते हैं, और 263 की बात करिए जहाँ पे आप जा सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर पार्शियल मर्जर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कमाला चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA having his main object as medical relief earned income of 2 lakh rupees as interest on bond issued by local authority and agriculture income of 4 lakh rupees during the previous year 2021, which of the following is correct। ठीक है, अब इसके बाद अपने को ट्रस्ट के बारे में बात करनी है। यहाँ पे मैं आपको एक बैकग्राउंड देना चाहूँगा। ट्रस्ट में क्या होता है कि जितनी भी इनकम और डोनेशन आपको मिलता है वो आपको अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप सेक्शन नंबर 11 और सेक्शन नंबर 12 के अंदर डिडक्शंस के लिए एप्लीकेबल होते हो, आपको सेक्शन नंबर 10 के अंदर जितनी भी एग्जम्पशंस हैं उनका बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है, आपको एग्रीकल्चर इनकम की जो इनकम है उसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे इसको एग्रीकल्चर इनकम हुई है 4 लाख रुपए की, और एक अदर इनकम हुई है जिसका भी डिडक्शन आपको 10-15 में जर्नली मिलता है। ठीक है, तो उस रिलेशन में आपको आंसर करना है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट आउट। इफ योर आंसर इज डी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग ट्रस्ट इज क्वाइट क्लियर। अब यहाँ पे बात ये हुई है कि जो एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जम्पशन पे था, तो जब वो एग्जम्पशन पे वो एक्सेप्शन में था तो उसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर सेक्शन 10 की कोई सी भी इनकम है जो जर्नली एग्जम्प्ट होती है, लेकिन ट्रस्ट के केस में उसको पहले अप्लाई करना पड़ेगा, तभी उसको उसका डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है सेक्शन नंबर MCQ नंबर 85, डेल्टा लिमिटेड। अ डोमेस्टिक कंपनी डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ऑफ 85 लाख रुपीज़ for the year 2021 and distribute the same on 27/6/2020। ठीक है, मिस्टर गणेश को डिस्ट्रीब्यूट करा है डिविडेंड 12.75 लाख रुपीज़ का, और फिर उसके बाद मिस्टर राजेश को करा है, वो भी रेसिडेंट है, उनको 8.5 लाख रुपीज़ का करा है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके बारे में ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो ख़त्म हो गया भाई, ख़त्म हो गया। टैक्स इज डिडक्टेड, ठीक है, 194 और 194 के हिसाब से, ठीक है, डिडक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद टैक्सेबल इन द 10% थोड़ी स्लैब रेट के हिसाब से होता है। आंसर इज डी इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, अमेंडमेंट पे आया है। ठीक है, अब इसके बाद आता है 86, which of the following individual would be entitled for opt of presumptive taxation scheme under the Income Tax Act 1961। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन कौन से लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए एप्लीकेबल है। अ रिटेल ट्रेडर हैविंग टर्नओवर ऑफ 2 करोड़ रुपीज़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है, एप्लीकेबल है। अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज़ अ 92 बाई 50 तक होती तो हम बोल देते, तो मतलब अंकल एप्लीकेबल नहीं है इस केस में। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं होल ट्रेडर। ठीक है, 2 करोड़ से कम है, एप्लीकेबल है। डॉक्टर 50 लाख तक है, एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल ओहो 44 AE 10 से ज़्यादा तो नहीं हो गए, कह रही 8 थे, 2 सोल्ड कर दिए, 6 बचे, 6 में से 10 ही हैं। एनी किसी भी टाइम 2 से मतलब 2 को छोड़ के, सेकंड वाले को छोड़ के बाकी सब एप्लीकेबल है। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेनेशन में आपको दी हुई हैं विथ रीजंस, आप देख सकते हैं। ये देखिए 64 सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं।
एक बार मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, यस ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं 87। मिस्टर अर्जुन टोटल इनकम कम, ओ भैया अब कंपटीशन वाला एक तो क्वेश्चन आया। मिस्टर अर्जुन टोटल इनकम कंप्राइजेज ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, 112A वाला नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, ठीक है। इक्विटी शेयर्स पे 2 लाख रुपए का, लॉटरी लग गई 1 लाख रुपए की, सेविंग बैंक, ओहो सेविंग बैंक इंटरेस्ट जैसे ही सुनते हो 80 TT है, ध्यान आ जाना चाहिए, ठीक है। 40 साल की एज है तो TT भी नहीं आएगा, 80 अपना, ठीक है, अपना 80 TT है, याद आ गया अपने को, 10,000 तक का डिडक्शन मिलता है वहाँ पे। अब इसके बाद है ना ये PF के अंदर भी इनने 1.5 तो 80C के अंदर भी डिडक्शन मिलेगा। और इनने क्या बोला है कि डज नॉट ऑप्टेड फॉर द प्रोविजन ऑफ अ 115 BAC। चलो ये सुनते ही शांति मिल गई, ठीक है, याद ही नहीं होते वो वाले इंटरेस्ट रेट और टैक्स रेट्स, ठीक है। अब आप प्लीज़ ट्राई करिए इसे। If your answer is C, congratulations, your concept regarding basic rates is amazing। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि मेन मुद्दा क्या था कि भैया 5 लाख का हुआ है लॉन्ग टर्म, 2 लाख का हुआ है शॉर्ट टर्म और 1 लाख की लगी लॉटरी, टोटल हो गए 8 लाख रुपए। 30,000 की इनकम हुई है किस चीज़ पे, सेविंग बैंक पे, तो हो गए 8,30,000 रुपये। 10,000 का 80 TTA का डिडक्शन मिल गया, ठीक है ना। तो अब बचा क्या है कि 1.50 लाख का जो 80C का डिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा। वहाँ पे हमको ये स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉटरी है, इन केसेस के अंदर चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलता। तो चैप्टर 6A का डिडक्शन सिर्फ बचे हुए 20,000 रुपये के लिए मिलेगा और बाकी सारे अमाउंट के ऊपर जो स्पेसिफिक रेट्स हैं 20%, 15% और 30% पे टैक्स लगेगा और फिर उसके ऊपर सरचार्ज ऐड होगा। मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ इसका। ये देखिए यहाँ पे आ गया 8,30,000 रुपीज़, सिर्फ जो 20,000 रुपीज़ है उसी का आपको मिला 80C के अंदर, फिर जो बचे हुए 8 लाख पे लगा। अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट लेना है। बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, चाहे वो नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो 112 वाला या 112A वाला, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपको प्लीज़ यहाँ पे बेनिफिट लेना है और फिर उसके बाद नॉर्मली ये टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। बेसिक एग्जम्पशन लेना भूल सकते हो, कॉमन फिटफॉल है। अब इसके बाद आता है मिसेस कविता, वाइफ ऑफ मिस्टर सुंदर, ठीक है। क्लबिंग के प्रोविजंस क्लिक हो जाने चाहिए। इज अ पार्टनर इन अ फर्म, हर कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख रुपीज़ का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उनका फर्म में, उसमें से 3 लाख रुपए है वो सुंदर ने गिफ्ट करे थे उसमें से हैं, तो रेशो निकलेगा 3/5 से। ऑन 2 4 2020 को फर्दर अपने को कोई मतलब ही नहीं है, हम तो पहली तारीख का देखते हैं भाई। ये चीज़ ध्यान रखना। ICI के जो स्टडी मैट है उसमें क्वेश्चन है, उसमें 1 तारीख को आपको है ना वो करा गया है इन्वेस्टमेंट, तो वो तब इंक्लूड हो जाता। अगर ये 1 तारीख को करा जाता तो अपन रेशो कैसे निकालते, 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख से, ठीक है। लेकिन इस केस में अपन निकालेंगे 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख से, ठीक है। ये 1 लाख का इन मटेरियल है अपने लिए। फर्म पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है रिसिपेंट के हाथ में, PGPP के अंदर टैक्सेबल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद शेयर ऑन प्रॉफिट एग्जम्प्ट रहता है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। फिर तो यानी अब इसके हिसाब से जो 60 लाख है वो अपन उसका है ना 3/5 करेंगे, यानी जो अपना 36 लाख रुपीज़ है वो मिस्टर सुंदर के हाथ में क्लब हो जाएगा। बाकी 24,000 रुपीज़, सॉरी लैक्स बोल दिया मैंने, 24,000 रुपीज़ मिसेस कविता के नाम पे टैक्सेबल होगा। तो प्लीज़ फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जम्प्टेड बट इंटरेस्ट ऑफ 36,000 rupees is included in the income of Mr. Sundar as per the clubbing provisions, and interest of 24,000 rupees is included in the income of Mrs. Kavita, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं 89 पे। एक्स लिमिटेड अ डोमेस्टिक कंपनी नॉट ऑप्टिंग, सुनते ही मेरे को इतना सुकून मिल जाता है ना, नॉट ऑप्टिंग फॉर द प्रोविजन ऑफ 115BAA।
हैज़ अ टोटल इनकम ऑफ 10 करोड़ 1 लाख रुपीज, ओ माय गॉड, ठीक है, क्या दिक्कत है। द ग्रोस रिसीव ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द प्रीवियस ईयर, ठीक है, 400 करोड़ से कम है तो 25% लगेगा। द टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी, सिंपल टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी, करके बताइए, ठीक। सो if your answer is B, congratulations, your concept regarding marginal relief is clear। क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिर्फ मार्जिनल रिलीफ का लगना था, क्योंकि यहाँ पे बकेट चेंज हो रहा है। जैसे ही 10 करोड़ क्रॉस करती है डोमेस्टिक कंपनी, उनके ऊपर 12% से सरचार्ज लगता है, ठीक है। तो जर्नली हम क्या करेंगे कि जो 10 करोड़ 1 लाख रुपीज़ है, उसके ऊपर 25% टैक्स, 12% सरचार्ज और 4% एजुकेशन सेस लगाएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ मार्जिनल रिलीफ, जब भी बकेट चेंज होता है तो जितनी आपकी इनकम इंक्रीज हुई है उससे ज़्यादा से आपका सरचार्ज की वजह से आपका टैक्स इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 25% प्लस 7% प्लस 1 लाख रुपीज़ प्लस 4%, 1 लाख रुपीज़ जो इंक्रीज इनकम हुई उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बता देता हूँ। ये देखिए, मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट के हिसाब से 10 करोड़ के ऊपर 25% प्लस 7% सरचार्ज प्लस ऐड करेंगे 1 लाख रुपये, जितनी हमारी इनकम बढ़ी है प्लस सेस कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट आएगा। और पहले जो मैंने कैलकुलेशन बताया था कि 10 करोड़ 1 लाख के ऊपर आप 25% प्लस 12% प्लस 4% करेंगे तो वो जो अमाउंट और इस अमाउंट का जो डिफरेंस आएगा उसको मार्जिनल रिलीफ बोलेंगे और टैक्स इतना ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ज़रूर आता है मार्जिनल रिलीफ का, प्लीज़ कंसीडर करिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 90 की। मेसर्स एटलांटा एयरलाइंस इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी इन USA operated its flights to India and vice versa during the year 2021 and collected charges of 280 crores for carriage of passengers and cargo, out of which 100 crore was received in US dollars for the passenger fares from Atlanta to Delhi. Out of 100 crores US dollars equivalent to 40 crore rupees is received in India. Expenditure करा है 11 करोड़ रुपीज़ का। इफेक्टिव रेट बताना है। अब देखिए इफेक्टिव रेट तो 40s में, यहाँ पे आपको प्रिजम्पटिव भी क्लिक होना चाहिए, जो 40 BB वाली सीरीज़ है इसके ऊपर 5% लगता है आपको 5%, लेकिन रेट्स देख के लगता है कि इन लोगों ने वो प्रिजम्पटिव रिजीम के अंदर ये लोग नहीं गए हैं। तो ठीक है, अगर कोई सी भी फॉरेन कंपनी है उसके ऊपर 40% लगता है। इनका जो इनकम है वो कितनी है, वो 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 5% का आपको है ना सरचार्ज भी लगेगा और प्लस 4% एजुकेशन सेस, तो 43.68% आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, सिंपल था। अब इसके बाद ये आता है मेरा फेवरेट क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन। ये सुनिएगा। Mr. Akhilesh, a non-resident Indian citizen, is an enthusiastic sport person and keeping and contributing to the article on the game। अरे ये तो पता है मुझे, 194 ही लगता है, 20% देखो दिया हुआ भी है, और हाँ इस पर सेस भी लगता है, एजुकेशन एनआर को दे रहे हैं तो, लेकिन यहाँ पे तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इग्नोर, तो 20% इज द आंसर। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा इंथुजियास्टिक होकर गलती करने की कोशिश करी है, जो आप भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे जो बेसिक प्रिजम्पशन है आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। आपको ये पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन की नीड क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ही अप्रोचेज यू टू इंक्वायर ऑन द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम। वो टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम पूछ रहा है, टीडीएस पूछ ही नहीं रहा। अपने को ऊपर पढ़ते ही टीडीएस क्लिक होता है, लेकिन उसने टीडीएस पूछा ही नहीं। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ें, उसने तो टैक्सेबिलिटी पूछी, और टैक्सेबिलिटी तो नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से होगी। ठीक है, यहाँ पे गलती हो सकती थी, प्लीज मार्क करिए इसमें। अब इसके बाद आती है सम्राट। अ रेसिडेंट इंडियन हैज अर्नड एन इनकम ऑफ 4 लाख बाय वे ऑफ अ लमसम कंसिडरेशन ऑफ अ कॉपीराइट ऑफ अ बुक यानी किताब
किताब से याद आता है 80 QQB, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि अपने को अगर अब मिली है तो 3 लाख तक की आपको डिडक्शन मिलती है, ठीक है। फिर इसने वर्क करा है कंट्री ई में करा है, ओ माय गॉड DTAA का कॉन्सेप्ट आएगा, विच डज नॉट हैव DTAA नहीं है तो सेक्शन नंबर 91 के अंदर आपको रिलीफ मिलती है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है, द सेम कैन बी टैक्सड एट अ फ्लैट रेट ऑफ 5%, वहाँ पे 5% के हिसाब से हुआ है, और ग्रोस टोटल इनकम है 7 लाख रुपीज़। ग्रोस टोटल इनकम है यानी 4 लाख इंक्लूडेड है। ग्रोस टोटल इनकम में से 3 लाख रुपीज़ माइनस करेंगे अपन चैप्टर 6 से का, तो अपना आ जाएगी 4 लाख रुपए। अब 4 लाख रुपए ही आ गई है तो अपन रेसिडेंट है तो भैया अपने को तो रिलीफ भी मिलती है 5 लाख रुपए तक के लिए अंडर सेक्शन 87 है, तो भैया टैक्स तो बनना ही नहीं है। अब टैक्स ही नहीं बनना तो फिर रिलीफ कहाँ से मिलेगी? इनने बहुत सिंपल था, ठीक है। मतलब ये शॉर्टकट था, पहले आप टैक्स कैलकुलेट करोगे फिर ये लगेगा, पहले ही दिमाग लगाओ ना भैया, टैक्स ही कैलकुलेट नहीं हो रहा तो काय की रिलीफ, काय को फालतू में एवरेज टैक्स निकाले ना, ये निकाले वो निकाले, ठीक है, खत्म। अब इसके बाद बात करते हैं 93 की। मिस्टर गणेश इज रनिंग अ स्टील फैक्ट्री। द टर्नओवर ऑफ द फैक्ट्री ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 अमाउंट्स टू रुपीज़ 2.5 करोड़। मतलब टैक्स ऑडिट की ज़रूरत है, द एस्टिमेटेड से हमको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हैज़ अवेल द कंसल्टेंसी सर्विस फ्रॉम द दिल्ली बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोमल सर तो नहीं है। अ कंसल्टेंसी फीस अमाउंटेड टू रुपीज़ 1,84,000 रुपीज़ इज चार्ज। शुड मिस्टर गणेश डिडक्ट TDS डिडक्ट करना है, ठीक है। 194J क्लिक होना चाहिए, 194J के अंदर 10% क्लिक होता है। कब आपको जमा करना है? जब भी मेरे TDS डिडक्ट होना चाहिए, मतलब 10/4/2020 को, तो जब सर्विसेज अवेल हुई हैं, तो फिर इसके बाद उसके नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक के आपको है ना जमा करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रैश हुआ है क्या? नो, क्रैश वाले टेन्योर में नहीं आ रही है डेट, ठीक है, डेट क्रैश वाले, तो आपको है ना यहाँ पे कंसिडर करना है A इज़ द करेक्ट आंसर। 10% लगाया हुआ है और ये डेट दी हुई है, डेट 2 में दी हुई थी, ये क्रैश के हिसाब से दिया था और क्रैश हो नहीं रहा। क्रैश वाला है कि डेट याद रख लेना कि किस डेट के उसमें याद हो रहा है। बहुत कम चांसेस है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, लेकिन अपने को तो पढ़ के जाना है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। मिस्टर नवीन इज़ अ एम्प्लॉय वर्किंग इन अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। ही रीपेड अ लोन इन कैश ऑफ रुपीज़ 24,000 रुपीज़। मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको मार्क करें इंपॉर्टेंट। 24 लाख रुपीज़ का इसने है ना वो 24 लाख बोल रहा हूँ, 24,000 रुपीज़ का इसने पेमेंट करा है, ठीक है। 24,000 का पेमेंट करा है, ओ माय गॉड, कैश में पेमेंट करा है। सेक्शन नंबर 269T क्लिक होना चाहिए, और 269T की पेनल्टी किसके अंदर दी हुई है? 271E के अंदर, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि इसने दिया है, उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड था। हमें अब आपको बताना है कि आंसर क्या है। प्लीज़ ट्राई इट आउट बाय योरसेल्फ। इफ़ योर आंसर इज C, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब यहाँ पे बात ये हुई है कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट था वो हम पेनल्टी लगाते समय 271E की पेनल्टी लगाते समय कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन जब हम 20,000 रुपीज़ का लिमिट देखेंगे तब वो इंटरेस्ट का अमाउंट कंसिडर होगा, ये कैच। तो 5,000 रुपीज़ वहाँ पे कंसिडर हुआ, लिमिट क्रॉस हुई 20,000 की, लेकिन पेनल्टी सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे लगती है, इंटरेस्ट अमाउंट पे नहीं लगती, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप फंस सकते हो, प्लीज़ इसको मार्क करो। अब इसके बाद हम बात करते हैं मिस्टर सैम, अ US फुटबॉल मैच रेफरी। ओ माय गॉड, अब आया 194E। हैज़ अर्नड इनकम फ्रॉम फुटबॉल टूर्नामेंट इन इंडिया। आर TDS प्रोविजंस एप्लीकेबल तो होंगे, लेकिन 194E के नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है कि मैच रेफरी और अंपायर इंक्लूडेड नहीं होते, ठीक है। वहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन और इंटरटेनर वगैरह इंक्लूडेड होते हैं, तो लेकिन TDS कटेगा एज पर रेट एम्फोर्स, लेकिन एज पर सेक्शन नंबर 195, ठीक है, कोई बात नहीं।
अब इसके बाद आता है, इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा, सेक्शन नंबर 80D के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है जो मेडिक्लेम से रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एज है 35 ईयर्स की, इसने सेल्फ, अपनी वाइफ, अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रंस, फादर, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, मदर, उनके लिए लिया है, क्या कहते हैं उसे, मेडिक्लेम वगैरह। तो यहाँ पे आप अमाउंट देखते हैं, ठीक है, जो आपका 20,000 है इसका तो मिल जाएगा, मम्मी के लिए 6,000 का लिया है, इसका मिल जाएगा। प्रिवेंटिव चेक ठीक है 7,000 का है, कैश में है, मिल जाएगा, लेकिन 5,000 तक के लिए मिलेगा, 5,000। तो ये आप प्लस करिए, 20 + 6 + 5, आई थिंक इट क्लोज टू 31, ठीक है। ये जो 2 है इसका नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर देते हो तो इन सेम केस आपको है ना एक्सपेंडिचर का पेमेंट नहीं मिलता, ठीक है। 32 का मिल जाएगा, 50,000 तक की लिमिट है वो तो सीनियर सिटीजन के केस में, तो ये भी मिल जाएगा। तो 31 + 32 63 इज़ द आंसर, ठीक है। यही सेम चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है, ये आप देख सकते हैं, 26 + 31 और 32, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, मिस्टर एक्स टुक अ लोन फ्रॉम SBI ऑन 31/3/2012 ऑफ ₹10 लाख, ठीक है। 10 लाख रुपीज़ का लोन लिया और इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया 1 लाख रुपए का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, 2 लाख रुपए का ड्यू हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो हाँ ये रीस्ट्रक्चर स्कीम में चले गए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रीस्ट्रक्चर स्कीम करी, उससे क्या कोई मतलब नहीं है कि कितने में क्या करा, ठीक है ना। अपने को इसमें क्या होता है कि 43B एप्लीकेबल होता है, PJP का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, डिडक्शंस ऑन पेमेंट बेसिस। अब यहाँ पे आपने कितने का पेमेंट करा है उससे बात करते हैं, ठीक है। तो अब इन लोगों ने यही पूछा है कि कितने का डिडक्शन मिलेगा। इन लोगों के हिसाब से जो इनने इंटरेस्ट पेमेंट करा है उसका डिडक्शन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और जो अमाउंट कन्वर्ट हुआ है 2 लाख का, कन्वर्जन इज़ नॉट अमाउंट टू अ पेमेंट, ठीक है। तो सिर्फ 1 लाख रुपए का मिलेगा। तो उसके हिसाब से हमें इसका व्यू बताना है, तो सीधा दिख रहा है कि डी इनकरेक्ट व्यू है इनका, ओनली 1 लाख रुपए का अलाउ मिलेगा ड्यू टू द कर्टेसी ऑफ सेक्शन नंबर 43B। अब इसके बाद आते हैं जो अपना सर्च से रिलेटेड प्रोविज़न आया है। सर्च से रिलेटेड प्रोविज़न मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूँगा, 132 में सर्च होती है और जिसकी पेनल्टी लगती है 271AA के अंदर। 271AA ये बोलता है कि अगर आपको 30% का टैक्स, मतलब आपको पेनल्टी तो लगेगी भैया, सर्च हो गई है, बहुत मेहनत करी है हम लोगों ने ढूंढने में, ठीक है, तब भी हम आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आपको 30% आप पेनल्टी भर देना। मैक्सिमम तो 60% जाती है, 30% कब भर दोगे भैया? जब हमने सर्च करी है तो जो हमने बताया ना सब बता देना, हमको सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर देना, उसका सोर्स डिस्क्लोज कर देना, प्लस जो स्पेसिफाइड पीरियड है उसके अंदर आप है ना आपका पेमेंट कर देना टैक्स का, आपकी रिटर्न ऑफ इनकम में बता देना। तो हम आपसे 30% ले लेंगे वरना 60% लेंगे, ठीक है। देखते हैं केस में क्या हुआ। मिस्टर एम के ऊपर रेड हुई, ड्यूरिंग द सर्च ऑफ द एडमिटेड द एडिशनल 50 करोड़ उनने बता दी भैया, बहुत अच्छे। वाइल फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम डी डिड नॉट डिक्लेयर द सेड इनकम, रिटर्न फाइल करते समय मुकर गए भैया, तो भैया 30% लगेगा, कहाँ कंडीशन सेटिस्फाई हुई। तो आप 50 करोड़ का सॉरी आप 60% करोगे तो 30 करोड़ से आपका आंसर आना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, आ ही जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन या तो MCQ, प्लीज़ सर्च आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन है 99, मिस्टर हैरी एंड मिस्टर सुजॉय आर रेसिडेंट एंड इंडियन सिटीजन हैव बीन अपॉइंटेड एज अ सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ कंट्री ए की एम्बेसी एंड कंट्री बी की एम्बेसी, ठीक है। सिंपल देखो, सिंपल प्रोविजन से इसको है ना, ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है, इसको मार्क कर लेना। देखो, बाहर से कोई बंदा आता है यहाँ पे एम्बेसी में काम करने के लिए, ठीक है, हमारा बंदे भी बाहर जाते हैं एम्बेसी में काम करने के लिए। अगर जब हमारा बंदा बाहर जा रहा है तो वो लोग टैक्स नहीं ले रहे हैं तो हम भी टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। सिर्फ ये कंडीशन है कि जो बंदा बाहर से इंडिया में आ रहा है वो सिटीज़न नहीं होना चाहिए इंडिया का। लेकिन जैसे ही यहाँ पे जो बात हुई है, ये लोग क्या है, ये तो इंडियन सिटीज़न है, ठीक है ना, और वहाँ की एम्बेसी के हिसाब से यहाँ पे काम कर रहे हैं।
जब ये इंडियन सिटीज़न है तो उससे कोई मतलब, तो इनको ये एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं लेगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है सेक्शन नंबर 10(6)(2) के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। हु इज़ नॉट अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, सिटीज़न इन केस ऑफ इंडिविजुअल हु इज़ नॉट अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ पे तो सिटीज़न ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। अब इसके बाद आता है लास्ट MCQ, वाई इज़ अ फॉरेन कंपनी हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया नेमली X Z a non-resident associate enterprises has invested 900 crore rupees through debt. Oh my God. ठीक है ना। नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज तो बता ही दिया इन लोगों ने है, उसने इतना सारा डेप में भी इंस्टॉल करके रखा है। जो EBITDA है वो दिया हुआ है 150 करोड़। भैया सेक्शन नंबर 94B एप्लीकेबल हो जाएगा, लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। इसके ऊपर सिंपल चीज़ है कि जो आपका 30% है, 30% ऑफ EBITDA उतना ही आपको अलाउ रहता है, बाकी डिसअलाउ कर दिया जाता है। जो डिसअलाउड पोर्शन है वो 8 साल तक के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो 150 का आप सीधा 30% करोगे तो 45 करोड़ रुपीज़ इज़ द आंसर। ठीक है। आपके लिए एक होमवर्क भी है कि अगर आप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है इसी सेक्शन से रिलेटेड जिसको कहते हैं थिन कैपिटलाइजेशन। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, तो ये प्रूव हो जाएगा कि आपके सारे इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम साइनिंग ऑफ।